تو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ان آیات میں اللہ عز و جل کی صفت سمع کو بیان کیا گیا ہے. صفت سمع کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمع سمع کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیں جی شیخ. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. یقیناً اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. دیکھیں مانا اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. لکھے اور اور اللہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. شکوہ کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. یقیناً اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. کل لکھے سنا مجھے. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت سورہ المجادلہ کی ہے. یہ آیت سورہ المجادلہ کی ہے. اس آیت میں یہ آیت سورہ المجادلہ کی ہے اور یہ آیت خولہ بنت ثعلبہ کے تعلق سے نازل ہوئی. یہ آیت سورہ المجادلہ کی ہے اور یہ آیت خولہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خولہ بنت ثعلبہ کے تعلق سے نازل ہوئی جب ان کے شوہر نے ان سے کہا تم میرے لیے میری ماں کے پیٹ کے جیسے ہو. انت علی کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کے پیٹ کے جیسے ہو. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے تھے اب تم اس پر حرام ہو چکی ہو. اب تم اس پر حرام ہو چکی ہو کیونکہ اس نے تم کو اپنی ماں کے برابر قرار دیا. اور وہ عورت کہہ رہی تھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیسے زندگی گزاروں، میری جوانی اس کے پاس گزر چکی، اس کے بچوں کو میں نے پالا، اب اس بڑھاپا میں مجھے چھوڑ دے گا تو کیسے میں زندگی گزاروں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اس نے جو ہے کسی کو یہ کہنا تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کے جیسے ہو، اس کو زہار کہیں گے. تو زہار سے عورت مرد پر حرام نہیں ہوتی ہے
बल्कि उसका कफारा देने के बाद वो उसके लिए हलाल हो जाती है। ठीक है, एक मिनट रुको। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही शेख। हेलो। जी शेख। हेलो। जी। जी आ रही शेख। आवाज आ रही है? जी शेख आ रही। अब क्या लिखी है बताओ, जो लिखी है सुनाओ मुझे। ये आयत सूरह मुजादिला की है और ये आयत खौला बिनते सालिबा के ताल्लुक से नाजिल हुई जब उनके शौहर ने उनसे कहा तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ के जैसे हो। जब उन्होंने आपसे सम को कहा तो आपसे सुनने फरमाया तुम उस पर हराम हो चुकी हो जबकि उसने तुझे माँ के जैसे कहा। इस पर ये आयत नाजिल हुई जिसमें जिहार का कफारा बताया गया, जिसमें जिहार का कफारा बताया गया। लिखे जी। यहाँ ये बात लिखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला के लिए सिफत समा की, कुरान मजीद में अल्लाह ताला के लिए सुनने की सिफत समउन लिखो, समउन यानी सुनने की सिफत तीन उसलूब में बयान किए गए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के लिए समउन यानी सुनने की सिफत तीन उसलूब में बयान किए गए हैं। पहला, समउन से मुराद मुतलक सुनना, आवाज को सुनना। पहला क्या है? समउन से मुराद मुतलक समा यानी आवाज को सुनना। पहले क्या लिखे? पहला तमाम से मुराद मुतलक समा यानी सुनना मुतलक आवाज। समा यानी आवाज को सुनना। ठीक है। और दूसरा जो मतलब है, समउन से मुराद समय तहदीद,
अमन समरात समय तहदीद। समान समरा समय तहदीद। तहदीद। तहदीद ता हा दाल या दाल। जी लिखे। धमकी देना। धमकी दूसरा देना। समन समरात धमकी देना। सुन रहा है या धमकी दे रहा है। तीसरा। तीसरा समा से मुराद तायीद करना, मदद करना। मदद करना। मदद कर। समझिए, यहाँ पर सुन लो, समझ जाओ। अब मैं कभी कहूँ आप जो पढ़ रही हैं मैं सुन रहा हूँ, मतलब सुनना, आपकी आवाज का मैं इदराक कर रहा हूँ, आपकी आवाज को मैं समझ रहा हूँ। ये हुआ पहला। दूसरा क्या है, बच्चे शरारत करते हैं, माँ कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ, तो क्या मतलब उसका। तो बच्चे शरारत कर रहे हैं, मौलिमा कह रहे हैं हाँ मैं सुन रही हूँ, क्या मतलब उसका। सुनने से क्या मुराद, धमकी देना। समझ गए। हेलो। जी कभी जो जी। है बच्चियां शरारत करती हैं तो मौलिमा कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ, क्या कह रही हूँ, तो उसका मतलब क्या है, धमकी देना। धमकी देना। समान समझ तहदीद। गए? समय तहदीद। और जी। कभी क्या है कि कोई तिलावत, अच्छी तिलावत कर रही है, क्योंकि हाँ भाई हम आपकी बात तिलावत सुन रहे हैं और आपकी तकरीर सुन रहे हैं, मतलब आपको इनाम देंगे, आपकी तारीफ करेंगे, ये सारे माने हैं। समझे। जी ये आपसे समान फला जो तारीफ। बात कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, यानी दो आदमी में झगड़ा हो रहा है, आपको उससे जो बात हो रही है हम उसे सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तायद करेंगे। तो कुरान मजीद में अल्लाह के लिए सुनने का जो लफ्ज आया है, ये सुनने के तीन मानी है। एक या उसलूब है या मानी है। पहला ये है मुतलक सुनना, जैसा ये आयत है कद समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली, इससे मुराद क्या हुआ, मुतलक सुनना। और कभी क्या है, सुनने से मुराद धमकी देना। उसके बाद वाले लक़द समी अल्लाहु कौल लदीना क़ालू, इसके अंदर क्या है, धमकी है। समझ गए। तीसरा क्या है, मदद करना। इन्ननी माकुमा अस्माउ व अरा। इन्ननी माकुमा अस्माउ व अरा। तो यहाँ पर क्या है, सुनने से मुराद क्या है, तायीद करना। समझ गए। तो बताओ, समा के कितने माने हुए। तीन। तीन माने हुए, कौन सा। समाय समा, तारीफ। तायीद, तहदीद और तायीद। तारीफ। तायीद यानी मदद करना। तो कल सभी अल्लाह सुन लिए। दूसरी आयत पढ़ो। दूसरी लक़द आयत पढ़ो। समी। अल्लाह ने सुन लिया उन लोगों की बात को जिन्होंने कहा अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। लक़द समी अल्लाहु क़ौला अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ सनक्तुबु मा क़ालू। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा, देखो, अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा, अल्लाह ने जिन्होंने उन कहा। लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ठीक है, जी से। क्या लिखे सुना। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और मालदार।
ठीक है। हाँ, बोलो ये आयत यहूद के ताल्लुक से नाज़िल हुई। लिखिए सर। हाँ, यहूद के ताल्लुक से नाज़िल हुई, जिन्होंने अल्लाह ताला को फकीर कहा, तो यहाँ उनको धमकी दी गई। अच्छा जानते देखिए, करो और सुनकर भी नजारा कह रही थी यहाँ आप आए बोल की ये टाइम सेंड कर रहे हैं आपके लिए, कह रही थी ये पूरा गलत है उनका टाइम। ठीक है। ये आयत यहूद के ताल्लुक से नाजिल हुई, जिन्होंने कहा था कि अल्लाह फकीर है। तो इस आयत में समा से मुराद समा तहदीद, उनको धमकी दी गई। समझे? तुम जो अल्लाह के बारे में कहते हो अल्लाह सुन लिया है, यानी उसकी सजा तुमको देगा। तीसरी आयत क्या है? इन्ननी माकुमा अस्माउ वारा, बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। ये आयत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई, जब वो फिरौन से बात कर रहे थे। ये किसके बारे में नाजिल हुई? मूसा और हारून अलैहिस्सलाम नाजिल हुई, जब वो फिरौन से बात कर रहे थे और डर रहे थे फिरौन उनको तकलीफ न दे। अल्लाह ने कहा मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, यानी फिरौन तुमको तकलीफ नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो गया समा के कितने माने हुए बताओ? तीन। पहला, पहला माने क्या है? मुतलक को बोलो ना आप लोग मतलब सुनना, इसके लिए कौन सी आयत है? قد سمع الله قول التي अच्छा दूसरा, تجادل समय तहदीद, वो कौन सी आयत है? لقد سمع الله قول الذين समय तायीद कौन सी आयत है? إنني معكما أسمع وأرى। हाँ शाबाश, हो गए। अच्छा, इसके जी बाद सर। जो आयत है, अम यहसबूना, क्या वो गुमान करते हैं? अम यहसबूना, क्या वो गुमान करते हैं? अन्ना ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम, कि हम नहीं सुनते हैं उनके राज को और उनकी सरगोशी को। क्या वो गुमान करते हैं कि हम नहीं सुनते हैं उनके राज को और उनके सरगोशी को? क्यों नहीं? और हमारे फरिश्ते उनके पास लिख रहे हैं। और उनके क्या माना सरगोशी लिखे? को, क्या वो गुमान करते हैं कि हम नहीं सुनते हैं उनके राज को, उनके सरगोशी को? हाँ, क्यों नहीं? और हमारे फरिश्ते, और हमारे फरिश्ते उनके पास लिख रहे हैं। यहाँ पर समझ से मुराद क्या बताओ? मुतलक ये मुतलक नहीं है। समा, यहाँ समय मुराद क्या तहदीद। है? हाँ, ठीक है, यहाँ समा तहदीद है। यहाँ समा तहदीद है। तो गोया कुरान में अल्लाह ताला के लिए समा का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज जो है तीन माने में हुआ है। मतलब सुनना, और धमकी देना, और तायीद करना। ठीक है। जी सर। ठीक, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।